तो मेरा नाम है प्रशांत सर और आज हम क्लास 9 फिजिक्स ग्रेविटेशन चैप्टर के कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस देखेंगे। तो क्लास 9 फिजिक्स का ग्रेविटेशन चैप्टर, इसके एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन आज हम देखते हैं। तो पार्ट फर्स्ट में हमने क्वेश्चन 10 तक सॉल्व किए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉल्व हियर। तो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 11. Why will a sheet of paper fall slower than one that is crumpled into a ball? So this is our question, and solution of this question is that the sheet of paper has a larger surface area. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये sheet of paper है, इसका surface area ज़्यादा होता है, ठीक है, larger surface area. And while the falling down, it has to overcome the force exerted by air or wind current, and it is called as the air resistance. तो आपको पता है कि ये जो जैसे अगर हमने अर्थ सरफेस पे यहाँ पे इसको छोड़ दिया अर्थ सरफेस के किसी हाइट से, तो एयर रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, इस पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस जो होगा इट विल अप्लाई, एंड नो दैट अगर क्रम्पल्ड पेपर है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कोई पेपर है, तो it has a smaller surface area compared with this plain paper, and it has to overcome very less amount of air current. Okay, so you can see this is what the acceleration due to gravity act on both the paper, it will be same. The value of g it is the same. Okay, and it is a gm upon r square. So while this paper also will have the same acceleration gm upon r square, but problem is that due to the air resistance, this plain paper will take more time to reach the earth surface, while this crumpled paper due to the surface area, okay, so area, so it will reach to the earth surface fast compared with this plain paper. Now let's see the question number 12. The gravitational force on the surface of moon is the only 1/6 as strong as the gravitational force on the earth. What is the weight or in newtons of 10 kg object on the moon and on the earth? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मून पे 1/6 as the earth of as the gravitational force on the earth surface. So let's see the solution of this question. Here we know the mass of object is a 10 kg, and we can find the weight on the surface of earth. Simply W is equal to mass times acceleration due to gravity, and we just know the value of g, that is 9.8. So we will multiply to the mass 10 kg, 10 multiplied by 9.8, we will get 98 Newton. So we just shift the decimal point toward the right side when we multiply to the 10. Now weight of the object on the moon, so it is a 1/6 weight on the earth surface. तो अर्थ सरफेस पे जितना वेट है उसको 6 से डिवाइड करो, you will get the weight on the surface of moon. It's that much simple. So as the gravitational force on the object on moon is only 1/6 as strong as the gravitational force on the surface of earth, so we can find the weight on the moon. So we have already calculated weight on the earth surface, it is 98, and we will divide it by 6. So 98 divided by 6 gives us 16.3 Newton. So weight on the surface of moon, it is 16.3 Newton, and weight on the surface of earth, it is 98 Newton. Now question number 12. A ball is thrown vertically upwards with a velocity 49 meters per second. Then calculate maximum height to which it rises, and second the total time it takes to return the surface of the earth. तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप डायग्राम निकाल सकते हो तो देखो, एक ठीक है, एक पर्सन है और बॉल को थ्रो कर दिया है, ठीक है, तो बॉल थ्रो कर दिया ऐसे, ठीक है। So here the ball is thrown upwards. So what is the initial velocity? It is given. It is
49 मीटर पर सेकंड दिस वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से उसने बॉल ऊपर फेंका है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये हाइट कितनी होगी, ठीक है, व्हाट विल बी द हाइट, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी पता है हमें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू भी हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें पता है कि बॉल ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी हाई होगी और जैसे ऊपर चला जाएगा उसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएंगी and it will reach a point, okay, where the acceleration due to gravity where the velocity of that object becomes zero, तो हम फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। तो कुछ सेकंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकेगा और फिर से वापस आएगा, isn't it? तो उसकी वेलोसिटी फिर इंक्रीज होती चली जाएगी और फिर अर्थ सरफेस पर रीच होगा तो अर्थ सरफेस से मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। और सो दिस विल बी द पाथ, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इसी में कि द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न द सरफेस ऑफ अर्थ। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पहले हम इसका टोटल डिस्टेंस कितना है, एच कितना है वो निकालेंगे। सो वी हैव द फॉर्मूला this third equation of motion, that is v square minus u square equal to twice gs. So final velocity, as already we discussed, that at the height, okay, h or this object, final velocity it will be 0. So 0 square minus initial velocity, it is a velocity of which we have sent a thrown object into the space, and that is a 49. So we put this value, then to multiply by the value of g। अगर यहाँ पे बॉल ऊपर की तरफ जाता है तो g की वैल्यू निगेटिव लेनी है, याद रखो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर g की वैल्यू, अगर बॉल ऊपर की तरफ जाता है तो 9.8, और अगर बॉल जो है वो आर की तरफ आता है तो 9.8 की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, g की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, 0 का स्क्वायर होगा 0, तो इट विल बी माइनस 49 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो 49 यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 49 इंटू 49, ठीक है, माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर है, सो इट विल नॉट बिकम पॉजिटिव। सो माइनस 49 इंटू 49, ये 2 इंटू माइनस 9.8 ये डिवाइड करेगा इस टर्म को, सो इट विल बी 2 इंटू 9.8। तो यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं 49 इंटू 49 को 2 इंटू 9.8 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और हमें मिलेगा 122.5 मीटर। सो दिस इज द हाइट, ओके, कितनी है 122.5 मीटर, ये हाइट हो गई। तो हम टाइम निकालते हैं कि 122.5 हाइट के लिए टाइम कितना लगता है। तो हमारे पास इक्वेशन है, सो वी विल यूज द इक्वेशन v is equal to u plus at, isn't it? So first equation of motion we will use, we have to find the time, and we have formula v is equal to u plus at. Instead of acceleration we will put the value of g, acceleration due to gravity. So final velocity to 0 थी, initial velocity we know that is a 49 meter per second, plus g की value minus 9.8 multiply by time that we have to find it. So ये 49 लेफ्ट साइड में चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये माइनस 9.8 यहाँ पे होगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 49 2 को डिवाइड करेगा, 9.8 को डिवाइड करेगा तो इसका ये होगा 2। सो 1/2 इज नथिंग बट इट इज अ डेसिमल पॉइंट, यहाँ पे होगा 9.8 का डेसिमल पॉइंट, इसका मतलब 10 टू द पावर -1 होगा। तो ऊपर चला जाएगा तो 10 हो जाएगा, isn't it? तो 10/2 कितना होता है 5 सेकेंड, ठीक है। तो 5 सेकंड ऊपर जाने के लिए लगेगा, तो उतना ही टाइम वापस आने के लिए लगेगा। तो टोटल टाइम कितना होगा 5 सेकंड प्लस 5 सेकंड, इट इज 10 सेकंड, ठीक है। तो टोटल टाइम होगा 10 सेकंड। तो इसका मतलब टोटल टाइम टेकन टू रीच द अर्थ सरफेस इट विल बी 10 सेकंड, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट कितनी होगी 122.5 मीटर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। A stone is released from the top of the tower of height 19.6 meter. Calculate its final velocity just before touching the ground. तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो कि यहाँ पे हमें देखना कि एक टावर है, टावर, ठीक है, एक टावर है और इस टावर का, ठीक है, ये टावर है और एक स्टोन रिलीज किया हुआ है यहाँ से, ठीक है, रिलीज किया हुआ है टॉप ऑफ द टावर।
इसकी हाइट है 19.6 मीटर, ठीक है, 19.6 मीटर इसकी हाइट है। और वी हैव टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी हमें निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी v। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम यहाँ से बॉल को या फिर ऑब्जेक्ट को या फिर स्टोन को छोड़ रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और इट इज कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, सो इट्स वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, सो बिफोर टचिंग द ग्राउंड इट्स वेलोसिटी विल बी सो हाई, सो हम इसे कहते हैं फाइनल वेलोसिटी एंड दैट वी हैव टू फाइंड इट। तो हमें क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी वी हैव टू फाइंड इट एंड वी नो द हाइट ऑफ द टावर, मींस हमें यस की वैल्यू भी पता है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एस, ठीक है। और हमें एक पता है कि जी की वैल्यू है, तो बॉल और द स्टोन दैट इज कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस, दैट टाइम वी विल टेक द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो हियर वी विल पुट द वैल्यू एंड वी कैन एबल टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So let's see, we have equation. So here you can see the initial velocity 0, final velocity we have to find, height or s that we know 19.6, that is the height of the tower, acceleration due to gravity positive when ball is falling down, ठीक है। So 9.8 meter per second square, we have formula, this third kinematic equation, v square minus u square is equal to twice gs, v for final velocity that we have to find, u initial velocity it is 0, value 2 multiplied by g की value 9.8, s हमें given है, height of the tower it is 19.6। so हम यहाँ पे calculate करते हैं, बस we have to do simple multiplication, you can see here v square is equal to, ये माइनस 0 स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर 0 होता है, v स्क्वायर माइनस 0 इट विल बी v स्क्वायर, और 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 19.6 हो जाएगा, और ये 19.6 एज इट इज, ये 96.6 एज इट इज, इसका मल्टीप्लिकेशन 19.6, तो इसका मतलब 19.6 होल ब्रैकेट स्क्वायर हो गया। तो अगर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो वी गेट प्लस और माइनस 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे इसकी, ठीक है। सो वी विल बी 19.6 मीटर पर सेकेंड। सो द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ओके, फाइनल वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड इट इज द v इज इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, a stone is thrown vertically upward with initial velocity 40 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब u दिया है, u कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, टेकिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बेसिकली हम 9.8 लेते हैं, उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 10 दिया है, सो दैट इज मोर कन्वीनियंट फॉर अस टू डू कैलकुलेशन। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन। तो स्टोन है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, ठीक है। तो पहले देखते हैं, स्टोन को ऊपर फेंका है, तो स्टोन ऊपर चला जाएगा, फिर से वापस आ जाएगा अर्थ सरफेस पे, ठीक है। तो यह हमारी अर्थ सरफेस है। तो हमें क्या क्या दिया है, कैसे कैसे फाइंड करना है, देखो इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है u 40 मीटर पर सेकंड, बॉल को फेंका है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू माइनस, ठीक है, माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी, ठीक है। सो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस 10 वैल्यू लेंगे हम जी की। एच और एस सेम है हमारा, वो हमें निकालना है इनिशियल फाइनल वेलोसिटी। जैसे बॉल ऊपर चला जाता है तो एक पॉइंट रीच होगा, वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हम देखते हैं इसको, एस की वैल्यू हमें निकालनी है, हाइट निकालनी है। तो हाइट कैसे निकालेंगे, हमें पता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस जी एस, ठीक है। तो v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 40 मीटर पर सेकेंड, 2 एज इट इज, g की वैल्यू माइनस 10, और यस वी हैव टू फाइंड। तो 0 स्क्वायर क्या होगा, सिर्फ 0 ही होगा, 0 माइनस 40 का स्क्वायर, तो माइनस में लिख दूंगा 40 स्क्वायर को 40 इंटू 40 लिख दूंगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू माइनस 10, तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे एक 0, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एस 0 विल गेट कैंसिल,
2 4 को डिवाइड करेगा तो 2 होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 40 80 मीटर। इसका मतलब ये 6 कितना है 80 मीटर है। ठीक है, ये 80 मीटर है। तो वापस आने के बाद देखो नेट डिस्प्लेसमेंट जो होता है, तो हम देखें कि बॉल जो है या फिर स्टोन है, ये ऊपर गया फिर वापस आ गया, तो इसका मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन इसकी सेम ही है। तो इसका मतलब इसका नेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो डिस्टेंस जो होता है, और जो डिस्टेंस जो होता है वो एक्चुअल पाथ कवर किया होता है, तो डिस्टेंस 0 नहीं होगा, वो जितना गया वापस आ गया। तो 80 मीटर ऊपर चला जाता है तो 80 मीटर वापस आ जाएगा, तो 80 + 80 हो गया 160 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब अप के लिए 80 मीटर और डाउन के लिए, डाउनवर्ड मोशन के लिए 80 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। सो टोटल डिस्टेंस जो होगा इट इज द 80 + 80 दैट इज 160 मीटर। ठीक है, तो इसमें हमें यस निकालना तो मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, हाइट जो होगी s = 180 मीटर और डिस्प्लेसमेंट होगी 0। ठीक है, 0 मीटर और टोटल डिस्टेंस होगा 160 मीटर। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। Calculate the force of gravitation between Earth and the Sun, given that the mass of the Earth is 6.6 into 10 to the power 24 kg and the Sun it is 2 into 10 to the power 30 kg. Average distance between the two is 1.5 into 10 to the power 11 meter. तो हमें क्या करना है, सन और मास इसके बीच में का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमें निकालना है। तो ये हमारा अर्थ है और ये मास ये क्या है, सन है, सन। ठीक है, ठीक है, तो इसके बीच में अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस दिया हुआ है। इसका मास है m e, मास ऑफ द अर्थ, और इसका मास है मास ऑफ द सन ms। ठीक है, और डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में इट इज 1.5 into 10 to the power 11 अप्रोक्सीमेटली। जी की वैल्यू कांस्टेंट है 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ गिवन 6 into 10 to the power 24 kg। मास ऑफ द सन 2 into 10 to the power 30 kg। So we will just put the value of these all the given physical quantities into the gravitational force formula. F is equal to capital G into MEMS upon d square. So here is the capital value G. This is the value of mass of the earth and this is the mass of the sun divided by the distance between the earth and sun. It is this 1.5 into 10 to the power 11 whole bracket square. So it is an inverse square law. So we will do calculation 6.67 into 6 into 2 that is giving 18.4। ठीक है, और 10 to the power -11, तो यहाँ पे ये 10 है, यहाँ पे 10 की पावर है, यहाँ पे 10 की पावर है, तो बेस सेम है तो पावर की एडिशन सब्सट्रैक्शन होगी -11 + 24 + 30 होगी। और इसके बाद डिनोमिनेटर में होगा देखो 1.25 का स्क्वायर होगा तो 1.5 का स्क्वायर तो 1.5 into 1.5। ठीक है, आंसर आएगा 15 into 15 कितना आता है 225, मतलब 15 का स्क्वायर और 2 डेसिमल पॉइंट 1 और 2, तो क्या होगा राइट साइड से 2 डेसिमल पॉइंट 2.25। और ये 10 की पावर 11 पावर का पावर मल्टीप्लिकेशन हो जाता है 10 की पावर 11 to the 22। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं और इसको डिवाइड 10 to the power 22 ऊपर चला जाएगा तो -22 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर में पावर की सब्सट्रैक्शन हो जाएगी 10 की, और ये इसको डिवाइड करने के बाद हमें फाइनल आंसर मिलता है 3.56 into 10 to the power 22 न्यूटन। इसका मतलब इसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट बिटवीन द अर्थ एंड सन इट इज इक्वल टू F। ओके, बिटवीन अर्थ एंड सन FES, अर्थ एंड सन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा approximately 3.56 into 10 की power 22 Newton. This much large force, it is very large force between the earth and sun. ठीक है,
the force between earth and sun, it is a 3.56 into 10 to the power 22 Newton. Question number 17. Question number 17. A stone is allowed to fall from the top of a tower 100-meter high. At the same time, another stone is projected vertically upwards from the ground with a velocity of 25 meters per second. Calculate when and where the two stones will meet. ठीक है, सो पहले तो क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा. अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टावर ऑफ 100 मीटर. तो एक टावर है, ठीक है, एक टावर ऐसा, ठीक है, ये टावर है, whatever it is tower, ठीक है. स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टावर ऑफ 100 मीटर. तो 100 मीटर का टावर है, तो यहाँ पे हम इसकी h है 100 मीटर हाइट, ठीक है. तो उसके बाद बोला है एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड. यहाँ से हमने स्टोन, एक ऊपर से स्टोन आ रहा है, ठीक है, और एक नीचे से स्टोन ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये स्टोन. तो 100 मीटर की हाइट है टावर की. Another stone is projected vertically upward from the ground with velocity 25 मीटर पर सेकेंड. तो ये जो स्टोन है इसकी वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड. एंड when and where these two stones will meet. तो इसके बीच में यहाँ पे कहाँ पे वे दोनों का मिलन, वो जो है वो एक दूसरे को मिलेंगे, ठीक है. तो स्ट्राइक हो जाएगा या फिर. तो देखते हैं. तो हाइट है टावर की 100 मीटर. टाइम हमारा जो है वो हमें निकालना है. जी की वैल्यू पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली. तो हाइट कवर्ड बाय द फॉलिंग स्टोन, जो स्टोन नीचे आ रहा है उसकी हाइट हम देखते हैं. तो इट इज S1 इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर. सो इसके लिए पहले निकालेंगे फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए, फॉलिंग स्टोन के लिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी. यहाँ पे देखो, ये फॉलिंग ऑब्जेक्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी. स्टेबल कंडीशन से फिर से ये मोशन में आएगा. तो यहाँ पे U 0 मल्टीप्लाई बाई T, तो पूरा 0 हो जाएगा. हाफ एज इट इज. G की वैल्यू 10 एंड T स्क्वायर एज इट इज. सो 2 इज डिवाइडिंग टू द 10, इट विल बिकम 5 टाइम्स T स्क्वायर. सो वी गेट दिस S इज इक्वल टू 5T स्क्वायर. मतलब S जो है, इसने जो टोटल पाथ कवर किया है और डिस्प्लेसमेंट हुई है, वो हमें मिली है इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है. सो 5 टाइम्स T स्क्वायर. नाउ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन थ्रोन अपवर्ड. ये जो स्टोन है इसने अपवर्ड डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर कर दिया है. तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है S2, और यहाँ पे हम देखते हैं G की वैल्यू 9.8 है, उसको हम अप्रोक्सीमेटली 10 लिखेंगे. अब ये बॉल जो है या फिर ऑब्जेक्ट है, ये जो स्टोन है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसलिए मैं G की वैल्यू निगेटिव लूंगा, -10 मीटर पर सेकेंड, एज इट इज मूविंग अपवर्ड्स अपोजिंग टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. और जो मूव हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, उसकी वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड. सो आई विल पुट द वैल्यू in this second equation of motion, that UT plus half GT square. So I will put the value of this initial velocity 25, T as it is, 1 by 2 as it is, G की value -10, T square as it is. तो 25T, और ये 2 is dividing to the -10, it is a -5, so -5T square. So 25T minus 5T square, I will get the equation. So total height हमें पता है 100 मीटर है. सो यहाँ पे हम देखेंगे कि S1 एंड S2 जो है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहेंगे इसे, और दिस वी कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 2. सो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज S1 प्लस S2. लेफ्ट साइड ऐड करेंगे, राइट साइड ऐड करेंगे. S1 प्लस S2 इट इज इक्वल टू 100. इट इज गिवन टोटल हाइट 100 मीटर. सो आई विल पुट द वैल्यू 5T स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5T स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड. सो दिस 5T स्क्वायर एंड माइनस 5T स्क्वायर विल गेट कैंसल. We get 25T and it is equal to 100 as we have written here. So 25T is equal to 100. So 25 will divide 100. So 100 divided by 25, that is a 4 second. तो
हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं पुटिंग दिस वैल्यूज इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट. सो वी कैन सी हियर एस हमारा जो इक्वेशन है ये, यहाँ पे हम 5t स्क्वायर में t की वैल्यू पुट करेंगे. तो t की जगह 4 पुट कर दिया तो 4 का स्क्वायर 16, 16 5 जा 18 मीटर. इसका मतलब ये जो है 18 मीटर है. तो 18 मीटर क्या होगा हमारा, देखो यहाँ पे. सो दीज द स्टोन्स विल मीट आफ्टर 4 सेकंड. जो स्टोन है वो 4 सेकंड के बाद मिलेंगे. व्हेन द फॉलिंग स्टोन हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर. जब ये फॉलिंग स्टोन है 80 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, यहाँ पे 100 मीटर, यहाँ पे 80 मीटर कंप्लीट करेगा, उसके बाद ये दोनों है वो मिल जाएंगे, ठीक है, स्ट्राइक हो जाएंगे एक दूसरे को. द टू स्टोन्स विल मीट आफ्टर 4 सेकंड. 4 सेकंड के बाद वो ये जो फॉलिंग स्टोन है वो 80 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा. सो व्हेन फॉलिंग एंड दैट टाइम दिस two stones will get strike. And this is the last question from this that exercise questions. So let's see what is the question. Question number 18. A ball thrown up vertically returns to the thrower after 6 seconds. Find first the velocity with which it has thrown up, b the maximum height it reaches, and third its position after 4 seconds. So let's see the initial velocity of object that we have to find it. Final velocity, जैसे कि बॉल को थ्रो कर दिया है अपवर्ड, तो हमें पता है कि अपवर्ड थ्रो करने पर एक पर्टिकुलर हाइट पहुंचने के बाद वो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी. तो v 0 हो जाएगी. और हमें पता है कि बॉल अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, तो g की वैल्यू होगी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, तो टोटल टाइम उसके लिए कितना लगा है, यस, तो दैट टाइम वी नो इट इज 6 सेकेंड. ठीक है, तो अगर जाने के लिए 6 सेकेंड लगता है तो वापस आने के लिए कितना, मतलब इन्होंने क्या कर दिया है, टोटल बॉल थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड. मतलब बॉल फेंकने के बाद वापस आने, वो उसके हाथ में गिर जाता है या फिर नीचे गिर जाता है, तो उसके लिए कितना टाइम लगा है, 6 सेकेंड. तो हमें पता है सिर्फ बॉल ऊपर जाने के लिए कितना समय लगेगा, half of the total time given, isn't it? तो हमें मिलेगा time for upward journey, it is a 6 divided by 3, that is 2 second. Sorry, 6 divided by 2, it is equal to 3 second. ठीक है, तो हम इक्वेशन पुट करते हैं, v is equal to u plus gt. यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो है उसकी 0 होगी. उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी that we have to find it, g की वैल्यू -9.8 as the ball is moving upward. t टाइम कितना लग गया है, 3 सेकंड लग गया है, तो we will multiply it. ठीक है, so -9.8 into 3, that is a 29.4. -29.4 ये लेफ्ट साइड चला जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा u is equal to -29.4 मीटर पर सेकंड. सो इसका मतलब बॉल को जो थ्रो किया था अपवर्ड, उसकी वेलोसिटी थी u इज इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकेंड. उसके बाद b है मैक्सिमम हाइट. मैक्सिमम हाइट जो होगी वो क्या होगी, यहाँ पे देखो हमारे पास इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस gt स्क्वायर. सो वी विल पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन. s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर. सो u की वैल्यू कितनी है हमारी, इनिशियल वेलोसिटी जस्ट वी हैव फाइंड इट एज 29.4 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना था, 3 सेकेंड, तो 3 प्लस 1/2 g की वैल्यू -9.8 मल्टीप्लाई बाय दिस टाइम इट इज 3 सेकेंड, सो 3 का स्क्वायर. सो दिस 29.4 मल्टीप्लाई बाय 3 इट इज 18.2 प्लस दिस -9.8 and this 3 का square 9 multiplied by -9.8 gives us 88.2, and this 2 is dividing to this minus 88.2, it gives -44.1. so that I will put here 88.2 minus 44.1. यहाँ पे देख सकते हो कि 88.2 minus 44.1 सब्ट्रैक्शन करते हम, तो यहाँ पे 1 होगा, डेसिमल पॉइंट यहाँ पे 4 एंड डेसिमल 4 44.1. तो हाइट मिलेगी 44.1 मीटर. तो इसका मतलब हाइट हो गई 44.1 मीटर. तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि सी पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड. तो 4 सेकेंड पर वो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर होगा, दैट
we have to find. Okay, so let's see. So here S is equal to ut plus half gt square formula. This is the second equation of motion. We will put the value, it is a 29.4, value of t 4. Just we have to put the time, it is a 4 second, because we have to find the position of object or ball after 4 second. So we just put, instead of t it is a 4, other values it is the same. G is equal to minus 9.8. So this multiplication, 29.4 multiplied by 4 gives us 117.6 plus 1 by 2 minus 9.8 into 4 square of 4, it is a 16. 16 multiplied by minus 9.8 gives us minus 156.8. So dividing this minus 156.8 by 2, we get 78.2, and this 117.6 minus 78.4, it is giving us 39.2. ठीक है, 39.2 मीटर. इसका मतलब ये होता है कि पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड it will be 39.2 मीटर फ्रॉम द टॉप. ठीक है, ऊपर से 39.2 मीटर पे ये ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है, आफ्टर 4 सेकंड. सो दीज आर द थिंग्स दैट इज आस. मैक्सिमम हाइट जो होगी वो होगी यहाँ पे 44.1 मीटर. सो पहला क्वेश्चन था कि किस वेलोसिटी से बॉल ऊपर जाएगा, तो ये था 29.4 मीटर पर सेकेंड. मैक्सिमम हाइट इट विल बी 44.1 मीटर, एंड पोजीशन ऑफ द बॉल आफ्टर 4 सेकंड इट विल बी 39.2 मीटर फ्रॉम द टॉप. So like and subscribe and share our channel.